In the dark, silent space far beyond Earth, there was a powerful alien race known as the Tharn Dominion. They were old, wise, and proud. Their spaceships were huge, shaped like black daggers that floated quietly through the stars. For many centuries, the Tharn had watched other planets. They believed they were the most intelligent beings in the galaxy. Earth was just another planet to them, noisy, messy, full of strange life forms. But Earth had one thing that caught their attention: games. 2. The Tharn games were not a joke. They were tools of learning. In their world, children trained with simulations to become warriors. Commanders used war games to plan real battles. So when they discovered that humans also played complex strategy games, they became curious. One game in particular stood out to them. It was called Stellar Dominion. On Earth, Stellar Dominion was known as a popular space war simulation. Players controlled fleets of starships, built space colonies, managed resources, and fought battles in the galaxy. The game was extremely detailed, so realistic that some armies and tech companies used it to test ideas. But for most players, it was just a video game. People played it on their computers for fun. Some even became famous because they were so good at it. Commander Virex was one of the Tharn's top military leaders. He had won real battles in space, destroyed enemy fleets, and studied strategy for over 140 Earth years. He believed that no human game could teach him anything. But the High Council of the Tharn Dominion gave him a mission: observe how humans think in warlike situations using this game, and report back. Virex thought it would be a waste of time, but he obeyed the order. From his ship hidden behind Earth's moon, Virex connected to the human internet. His technology was so advanced he could see everything: game servers, player profiles, match replays. He could even watch people through their webcams without them knowing. At first, he was bored. Most human players were chaotic. They made random choices. Some just wanted to win fast. Others had no patience. Their tactics made no sense to him. But then, one name appeared again and again on the game's leaderboard: Ethan R99. Virex was curious. He opened the player's match history. The player had an unusually high win rate. Virex expected to see an adult, maybe a military student or a professional gamer. But when he hacked into the webcam feed of the user, he was shocked. It was a 14-year-old boy sitting in a small room filled with toy spaceships, comic books, and half-eaten snacks. His name was Ethan Reyes, and he lived in a quiet town in New Mexico. He wasn't rich, he wasn't famous, he wasn't even using a high-end computer. But every time he entered a game of Stellar Dominion, he turned into a genius. Virex didn't believe it at first. He thought maybe the game had a bug or the boy was cheating, so he watched closely. Ethan's playstyle was different. While other players followed popular strategies, Ethan made up his own. He sent small ships on weird, zigzagging paths. He built fake colonies as traps. He even let enemies destroy his outer bases on purpose, just to lure them into an ambush. And it worked. Again and again, Ethan defeated adult players, AI systems, and even entire teams of professionals. His style wasn't just about logic, it had creativity, surprise, and boldness. Virex leaned forward, in his command chair, watching the screen with a frown. This child was breaking every rule of standard strategy, and still winning. For the next several days, Virex did nothing but watch Ethan play. He canceled meetings with other commanders. He paused his own simulations. His assistants whispered that the great Virex had become obsessed with a human boy. Virex didn't care. He took notes, analyzed every move, and even tried to simulate Ethan's battles with Tharn-level AI. But the AI lost every time. At night, Ethan sat at his desk, listening to music and clicking his mouse quickly. He didn't know that far above the clouds an alien commander was watching every move, studying him like a rare species. Virex grew frustrated. How could a child with no training, no advanced tools, and no knowledge of real space warfare beat every challenge so easily? Was it just luck? No. He watched enough to know it wasn't luck. Ethan had instinct, something Virex hadn't seen even in his best trainees. The commander felt something new inside him.
It wasn't just curiosity anymore. It was irritation. He remembered when he was young, training in cold, silent chambers aboard a Tharn warship. He had memorized thousands of battle formations, studied the mistakes of old generals, and practiced for decades. Yet here was a boy, barely a teenager, breaking every rule and still succeeding. Virex made a decision. He would face the boy himself, but not in person. That would break the rules of non-contact observation. Instead, he would enter the game anonymously. He created a new profile, VXR001. He customized the avatar, selected a blank battle map, and sent out a private challenge. The boy didn't respond right away. Virex waited for hours. Finally, at 11:47 p.m. Earth time, Ethan accepted. Virex smiled. The game would begin soon. He thought it would be easy. After all, he wasn't just a player. He was a real commander from a spacefaring civilization. He would crush this child in minutes, teach him the limits of human imagination. But deep down, something in Virex was nervous. Not afraid, but uncertain. He didn't know it yet, but he was about to face a challenge unlike any he had known before, and far away, in a small bedroom filled with glowing stars on the ceiling, Ethan Reyes stretched his fingers, cracked his knuckles, and smiled at the mysterious new opponent who had just joined the game. He didn't know he was about to fight an alien, but he was ready anyway. कमांडर विरेक्स का मूड अजीब था. उसने कभी किसी ह्यूमन को सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन अब उसका ध्यान सिर्फ एक नाम पर अटक गया था. ईथन R99. एक नॉर्मल सा लड़का, 14 साल का, कोई मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं, कोई हाईटेक सिस्टम नहीं, और फिर भी उसकी गेम स्ट्रैटेजी इतनी डेंजरस थी कि वायरेक्स खुद समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है. थार्न डोमिनियन के हाई कमांड को तो बस एक रिपोर्ट चाहिए थी. ह्यूमंस किस तरह के टैक्टिक्स यूज करते हैं, उनके गेम से क्या सीख मिलते हैं. लेकिन वायरेक्स काफी अंदर तक डिस्टर्ब हो चुका था. उसके लिए यह अब एक पर्सनल चैलेंज बन गया था. उसका ईगो हर्ट हो रहा था. उसके दिमाग में बार बार वही मोमेंट फ्लैश होता था जब ईथन ने 4 साइड से अटैक आने के बावजूद एक छोटी सी फ्लीट से सब कुछ रिवर्स कर दिया था. विरेक्स का कंप्यूटर बार बार बता रहा था कि यह मूव मैथमेटिकली इम्पॉसिबल था, लेकिन स्क्रीन पर ईथन फिर भी जीत रहा था. वायरेक्स ने अपनी शिप के कंट्रोल रूम का टेम्परेचर लो करवा दिया ताकि उसका माइंड शार्प रहे. उसने अपने सभी जूनियर ऑफिसर्स को बाहर भेज दिया. अब सिर्फ वो था, उसका AI असिस्टेंट और एक लाइव कनेक्शन अर्थ के गेम सर्वर के साथ. उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई, एक नए प्लेयर प्रोफाइल बनाए, VXR001. नाम में कुछ भी पर्सनल नहीं था, लेकिन उसके अंदर कंपटीशन का आग जल चुकी थी. 2 दिन तक उसने ईथन का रिस्पॉन्स वेट किया. गेम इनवाइट पेंडिंग पड़ा था. विरेक्स सोच रहा था शायद लड़का डर गया है, या फिर शायद उसने देखा ही नहीं. पर तीसरे दिन रात को, जब अर्थ के क्लॉक पे 11:47 बज रहे थे, आथन ने क्वाइटली मैच एक्सेप्ट कर लिया. गेम लॉबी खोली. विरेक्स ने तुरंत नोटिस किया ईथन का कर्सर स्लो था लेकिन प्रिसाइज. हर क्लिक सोच समझ के करता था. दोनों प्लेयर्स ने रैंडम मैप सिलेक्ट किया. नो टीम्स, नो अलायंसेस. 2 लॉग, 2 दिमाग, 1 बैटलफील्ड. गेम स्टार्ट हुआ. पहले 10 मिनट तक सब नॉर्मल था. विरेक्स ने थर्न टैक्टिकल लॉजिक फॉलो किया. अर्ली डिफेंस सेटअप, रिसोर्स सेंटर्स सिक्योर किए, बॉर्डर पेट्रोल्स डिप्लॉय किए. उसका AI असिस्टेंट पैरेलल डेटा गैदर कर रहा था. हर 3 सेकंड पे ईथन के मूव्स एनालाइज कर रहा था. पर एनालिसिस का रिजल्ट कुछ अजीब था. स्ट्रैटेजी अननोन, पैटर्न नॉन रिपीटेबल, रिस्क फैक्टर हाई. ईथन ने बेस का स्ट्रक्चर ऑड तरीके से बनाया था. उसने सेंट्रल कमांड एक जगह रखा, लेकिन सैटेलाइट आउटपोस्ट्स ऐसे बनाए जैसे चेस के नाइट मूव करते हैं, जिगजैग पैटर्न में. कोई एक्सपीरियंस्ड प्लेयर ऐसा कभी नहीं करता. विरेक्स कंफ्यूज हो गया. क्या ये स्टूपिडिटी थी या जीनियस? फिर ईथन ने एक छोटी फ्लीट भेजी, 3 लाइट क्रूजर्स और एक स्काउट शिप. इतने कम शिप्स से अटैक? विरेक्स ने इग्नोर किया. उसने सोचा ये एक डिस्ट्रैक्शन है. पर जब उसने स्काउट शिप को ट्रेस किया तो पता चला उसने एक वर्म होल एक्टिवेट किया था. एक हिडन शॉर्टकट जो गेम में रैंडमली जनरेट होता है. उस शॉर्टकट से ईथन की फ्लीट डायरेक्टली वायरेक्स के स्टोरेज यूनिट्स के पीछे लैंड कर गई. एक छोटी मिस्टेक, पर डैमेज ह्यूज था.
वायरेक्स के रिसोर्स डिपोज डिस्ट्रॉय हो गए। उसका 1/3 फ्यूल खत्म हो गया। वायरेक्स ने गुस्सा में अपने क्लॉज डेस्क पर मारा, लेकिन गेम कंटिन्यू रहा। उसने रिटेलिएट किया, हैवी बॉम्बर्स भेजे, ईथन की फ्लीट वाइप हो गई। पर विरेक्स ने रियलाइज किया ईथन को उस फ्लीट की जरूरत ही नहीं थी। उसका काम हो चुका था। ईथन अब गेम के मिड पॉइंट तक आ गया था। उसने मल्टीपल डीकॉय बेसिस बनाए जहां से सिर्फ सिग्नल्स जा रहे थे, रियल ट्रूप्स नहीं। विरेक्स का एआई कंफ्यूज्ड हो गया। सिग्नल्स ट्रेस किए पर सब झूठे निकले। विरेक्स को समझ ही नहीं आ रहा था एक्चुअल अटैक कहां से आएगा। फिर एक और मूव। ईथन ने अपने एक कमजोर सेक्टर में इंटेंशनली एक बेस बनाया जिसमें कोई शील्ड नहीं था। विरेक्स ने तुरंत अटैक किया। जैसे ही उसके शिप्स बेस के पास गए, सडनली वो एरिया ग्लिच कर गया। शील्ड्स ऑन हो गए और सराउंडिंग एस्ट्रॉयड बेल्ट से लेजर माइंस एक्टिवेट हो गए। ट्रैप। विरेक्स के 6 बैटल शिप्स वहां फंस गए और डिस्ट्रॉय हो गए। विरेक्स का एआई अलर्ट चिल्ला उठा, कमांडर, एनिमी इज यूजिंग साइकोलॉजिकल बेटिंग, रिस्क ऑफ इमोशनल इंटरफियरेंस 82%। ईथन क्वाइटली गेम खेल रहा था। उसकी वेबकैम से दिख रहा था वो रिलैक्स था। सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा था बैकग्राउंड में और उसके चेहरे पे एक हाफ स्माइल थी, जैसे वो माजे ले रहा हो। विरेक्स का पेशेंस अब टूटने लगा था। उसने मैनुअल ओवरराइड एक्टिवेट किया। अब गेम एआई नहीं, वो खुद कंट्रोल्स ले रहा था। अब तक उसने सिर्फ ऑब्जर्व किया था, पर अब वो अपने थार्न वॉर टैक्टिक्स यूज करेगा। रियल टाइम माइक्रो मैनेजमेंट शुरू किया। जो मूव्स वो रियल स्पेस बैटल्स में करता था, वही अब वर्चुअल बैटलफील्ड में यूज होने लगे। पर ईथन ने तब तक न्यू लेवल पर स्विच कर दिया था। उसने एक कमजोर फ्लीट को एनिमी के कोर के अंदर पुश किया। नॉर्मल प्लेयर ये कभी नहीं करता, टू रिस्की। बट ईथन ने फ्लीट को सैक्रिफाइस कर दिया सिर्फ एक काम के लिए, डेटा प्रोब लॉन्च करना। उसने विरेक्स का एग्जैक्ट कमांड सेंटर ट्रेस कर लिया। विरेक्स को तब समझ आया जब उसके बेस के अंदर एक ईएमपी पल्स स्ट्राइक हुआ, जिससे उसके वेपन्स 20 सेकंड्स के लिए डिसेबल्ड हो गए। 20 सेकंड्स में ईथन ने 2 कैपिटल शिप्स वहां भेज दिए। चौथा मिसाइल्स फायर ही हुए। वायरेक्स के शील्ड्स बेयरली बचे। गेम फाइनल स्टेज में था। स्कोर्स बराबर थे, पर अब वायरेक्स थोड़ा स्लो हो गया था। उसका माइंड ओवरवर्क्ड था। उसकी ईगो अब फ्रैक्चर हो रही थी। एक 14 साल का लड़का उसके सारे कैलकुलेशंस को तोड़ रहा था। उसके सारे सेफ असम्पशंस फेल हो रहे थे। ईथन ने फाइनल मूव के लिए एक स्टेल्थ फ्लीट बनाई जो रेडर में डिटेक्ट नहीं हो सकती थी। उसने ये फ्लीट अलग अलग डायरेक्शंस से भेजी। विरेक्स ने सब डायरेक्शन ब्लॉक किए एक्सेप्ट 1। वहीं से ईथन ने फाइनल मिसाइल अटैक किया। विरेक्स का कोर रिएक्टर एक्सप्लोड हुआ। स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज आया, ईथन R99 हैज वन द बैटल। विरेक्स स्क्रीन के सामने चुप बैठा था। उसका एआई असिस्टेंट साइलेंट हो गया था। शिप के अंदर सब कुछ शांत था, लेकिन उसके दिमाग के अंदर एक स्टॉर्म चल रहा था। पहली बार उसकी लाइफ में किसी ने उसे बिना किसी फिजिकल वेपन के हरा दिया था, एक गेम में, एक इमेजिनेशन से। वो समझ गया था यह लड़का सिर्फ प्लेयर नहीं है, यह कुछ और है। विरेक्स की ब्रीदिंग हैवी थी। उसने ईथन के डेटा को एक्सेस किया। कोई मिलिटरी ट्रेनिंग नहीं, कोई टैक्टिकल बैकग्राउंड नहीं, सिर्फ एक चीज थी जो स्टैंड आउट करती थी। ईथन शोज साइंस ऑफ पैटर्न ब्रेकिंग इंट्यूशन एंड chaotic टैक्टिकल एवोल्यूशन। वायरेक्स स्लोली खड़ा हुआ। उसके अंदर कुछ टूट गया था, या शायद कुछ नया बन रहा था। वो हार गया था, लेकिन उसे लगा वो शायद कुछ सीख गया है। और उसी वक्त अर्थ पर ईथन ने बस अपना हेडसेट उतारा, एक सिप कोक लिया और कैजुअली बोला, दैट गाय वॉज प्रिटी गुड। उसे क्या पता था, वो जिस लड़के को गाय कह रहा था वो किसी और प्लैनेट का रियल एलियन कमांडर था, जो अब पहली बार इंसानों को अंडर एस्टिमेट करने से डरता था। कमांडर विरेक्स को अब तक समझ नहीं आया था कि उसके साथ क्या हुआ। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक इंसान का बच्चा उसे डिजिटली हरा सकता है। उसका दिमाग अभी भी प्रीवियस मैच के रिप्ले से भर गया था। हर मूव को फिर से देख रहा था, स्लो मोशन में अलग अलग एंगल्स से, लेकिन हर बार कंक्लूजन वही आता था, ईथन रेयस ने उसे बीट किया था। नॉट जस्ट विथ लक बट विथ इंटेलिजेंस एंड इंस्टिंक्ट्स जो किसी ट्रेंड थार्न वॉरियर में भी नहीं होती। थार्न स्पीसीज में हार को वीकनेस माना जाता था, लेकिन विरेक्स अब इस हार को क्यूरियोसिटी के रूप में देख रहा था। वो पहली बार इंसानों को एक रियल स्पीसीज के रूप में एनालाइज कर रहा था,
जो अनप्रेडिक्टेबल है, इम्परफेक्ट है, पर इसी इम्परफेक्शन में कुछ डेंजरस भी छुपा है। उसने अपने शिप के एआई को कमांड दिया, रिट्रीव फुल अर्थ डेटा ऑन ईथन रेयर्स, स्कूल रिकॉर्ड्स, ब्रेन स्कैन हिस्ट्री, सोशल बिहेवियर लॉग्स, एवरीथिंग। एआई ने तुरंत रिस्पॉन्स दिया, Subject is highly imaginative, exhibits non-linear thought patterns, high dopamine response to challenge, frequent daydreaming observed during school lectures. विरेक्स के एलियन लॉजिक के हिसाब से ये सब वीकनेसेस थे। डेड्रीमिंग का मतलब लैक ऑफ फोकस होता था, पर अब उसे रियलाइज हो रहा था कि शायद ह्यूमंस के लिए यह सभी चीजें उनकी स्ट्रेंथ थी। इमेजिनेशन, इलॉजिकल चॉइसेस, इमोशनल रिएक्शन, ये सभी उस गेम के बैटलफील्ड में उसके अगेंस्ट काम कर गए। लेकिन अब सिर्फ ऑब्जर्व करना काफी नहीं था। फिरेक्स को समझना था कि ईथन ऐसे सोचता कैसे है। उसने एक नया प्लान बनाया। इस बार वो एक एआई वर्जन बनाएगा जो ईथन के थिंकिंग पैटर्न को सिमुलेट करे। उसने 1000 मैच रिकॉर्डिंग्स को एनालाइज किया। हर क्लिक, हर पॉज, हर सडन मूव को एक डेटा पॉइंट बनाया। 26 आवर्स तक उसका एआई मशीन ट्रेन होता रहा और लास्ट में एक वॉइस आउटपुट एक्टिवेट हुआ। सिमुलेशन ER99 एक्टिवेटेड। इस एआई का वॉइस यंग था, ह्यूमन एक्सेंट में। ये ऑलमोस्ट ईथन जैसे लगता था। फिरेक्स ने टेस्ट के लिए उससे एक स्पेस वॉर सिनेरियो दिया और एआई ने उसी पैटर्न में रिएक्ट किया जैसा ओरिजिनल ईथन करता। विरेक्स ने क्वाइटली बोला, शो मी हाउ यू थिंक, और फिर कुछ ऐसा हुआ जो विरेक्स ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये एआई जो ईथन के डेटा से बना था, उसने एक ऐसे टैक्टिक दिखाया जो किसी थार्न लाइब्रेरी में रिकॉर्ड भी नहीं था। वो एक कमजोर लुकिंग फ्लीट को यूज करता, एनिमीज के बीच से उसे ऐसे निकालता जैसे माजे के अंदर से लाइट निकले, और फिर वो एक शैडो ट्रैप क्रिएट करता, एक ऐसा वर्चुअल जोन जिसमें एनिमी शिप्स ग्लिच होने लगती। विरेक्स स्टंट था। इम्पॉसिबल, दिस वायोलेट्स 3 फंडामेंटल लॉज ऑफ स्पेशल लॉजिक। एआई ने कामली रिप्लाई किया, बट इट वर्क्स। उसी वक्त विरेक्स के माइंड में एक और आइडिया आया। अगर एक ह्यूमन लड़का इतना डेंजरस हो सकता है गेम लेवल पे, तो रियल बैटलफील्ड पे क्या हो सकता है? वो गेम नहीं, एक टेस्ट बनाना चाहता था। उसने अर्थ के सर्वर में सीक्रेटली एक स्पेशल प्राइवेट मोड एक्टिवेट किया, लाइव सिंक कॉम्बैट सिमुलेशन। यह एक एक्सपेरिमेंटल टेक थी जिससे वर्चुअल एनवायरनमेंट से प्लेयर के ब्रेन सिग्नल्स रीड किए जा सकते थे और उन्हें रियल टाइम सिमुलेट करके एक एलियन लेवल वर्चुअल वॉर जोन बनाया जा सकता था। ईथन को गेम के अंदर एक नया इनवाइट मिला। सेंडर अननोन था। गेम टाइटल था प्रोजेक्ट हीलिक्स लेवल X। नॉर्मली ईथन ऐसे अननोन इनवाइट्स इग्नोर करता था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इंटरफेस का डिजाइन फेमिलियर नहीं लग रहा था। ग्राफिक्स और इंटरफेस हाइपर रियलिस्टिक थे, जैसे किसी मिलिट्री सिमुलेशन का पार्ट हो। ईथन क्यूरियस हो गया। उसने सोचा, मे बी इट्स अ सीक्रेट डेवलपर टेस्ट और टूर्नामेंट, और उसने एक्सेप्ट कर लिया। जब गेम लोड हुआ, ईथन शॉक्ड रह गया। ये स्टेलर डोमिनियन नहीं था, ये कुछ और ही था। गेम के ग्राफिक्स अल्ट्रा रियलिस्टिक थे। प्लैनेट्स, शिप्स, एक्सप्लोजन्स सब इतने रियल लग रहे थे जैसे वो अंदर घुस गया हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसका हार्ट रेट सडनली इंक्रीज होने लगा। उसका ब्रेन ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे कोई एक्चुअल स्ट्रेस जोन में होता है। उसने कुछ मूव्स किए और तुरंत रियलाइज किया, एनिमी फ्लीट रिस्पॉन्ड कर रही थी एग्जैक्टली उसी पैटर्न में जैसा पहले VXR-001 करता था। वेट अ सेकंड, इट्स हिम अगेन, ईथन ने सॉफ्टली कहा। पार इस बार वो प्लेयर नहीं, सिस्टम का पार्ट था। एआई ड्रिवन एनिमी था, लेकिन उसका स्टाइल प्योर वायरेक्स जैसा था। फास्ट, मैथमेटिकल, ब्रूटल। 2 घंटे तक ये गेम चलता रहा। ईथन और सिम्युलेटेड वायरेक्स के बीच एक साइलेंट वॉर होती रही। ईथन के हैंड्स थक चुके थे, उसका ब्रीदिंग हैवी था, लेकिन वो गिव अप नहीं कर रहा था। हर बार जब लगता कि वो हार रहा है, उसने एक नया एंगल सोच लिया। कभी एस्टेरॉयड बेल्ट का यूज किया, कभी स्टारबर्स्ट एक्सप्लोजन को एक शील्ड बनाया। कमांडर वायरेक्स, जो अपने हिडन शिप से सब देख रहा था, शॉक्ड था। वो सोच रहा था, दिस ह्यूमन, ही अडैप्ट्स फास्टर देन एनी एआई। गेम के एंड में ईथन ने एक कमजोर सा डिकॉय शिप एनिमी के कमांड बेस की तरफ भेजा। सिम्युलेटेड वायरेक्स ने इग्नोर किया, पर शिप के अंदर एक माइक्रोस्कोपिक वायरस छुपा था जो एनर्जी कोर तक पहुंच गया और सब कुछ फ्रीज कर दिया। फाइनल मैसेज फ्लैश हुआ,
ईथन R99 विंस। ईथन ने चेयर से लीन बैक किया। आंखों में थोड़ी टायर्डनेस थी, लेकिन एक स्माइल भी। उसने सॉफ्टली बोला, दैट वॉज द वियर्डेस्ट मैच I've ever played। उस वक्त विरेक्स स्क्रीन के सामने साइलेंट खड़ा था। उसने स्लोली AI को डीएक्टिवेट किया, वॉइस कमांड दिया, लॉग मैच एज क्लास Z ह्यूमन अनोमली, प्रिपेयर साइकोलॉजिकल स्टडी फॉर इंटरस्पीसीज स्ट्रैटेजी लर्निंग। लेकिन वायरेक्स का एक और थॉट था जो उसने किसी को नहीं बताया। क्या वो लड़का रियल बैटलफील्ड में भी इतना ही अनप्रिडिक्टेबल होगा? विरेक्स के अंदर एक नई थॉट जग गई थी। क्या ह्यूमंस फ्यूचर में थर्न के लिए थ्रेट बन सकते हैं, या शायद उनके एलाई? लेकिन अभी के लिए उसे एक्सेप्ट करना था। उसने सिर्फ एक लड़का को नहीं देखा, उसने एक पॉसिबिलिटी देखी है, एक फ्यूचर का दरवाजा जहां ह्यूमंस और एलियंस एक बैटलफील्ड में इक्वल हो सकते हैं। और ईथन, उसके लिए यह बस एक और कूल गेम था। उसे अब तक यह नहीं पता था कि उसके एक्शंस ने किसी एलियन स्पीसीज के व्यू को बदल दिया था परमानेंटली। पिल्किथन अपने नॉर्मल स्कूल लाइफ में वापस आ गया था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। उसे लग रहा था कि वो अब किसी सिंपल गेम का प्लेयर नहीं रहा। उसने जैसा भी वो प्रोजेक्ट हीलिक्स गेम जीता था, उस एक्सपीरियंस ने उसका कॉन्फिडेंस और क्यूरियोसिटी दोनों को बूस्ट कर दिया था। पर उसके अंदर एक छोटी सी फीलिंग थी जो उसे हर वक्त स्ट्रेंज लगती थी, जैसे कोई उसे ऑब्जर्व कर रहा हो, जैसे वो किसी एक्सपेरिमेंट का पार्ट बन गया हो। एक दिन लंच ब्रेक के बाद उसके कंप्यूटर स्क्रीन पे एक स्ट्रेंज नोटिफिकेशन फ्लैश हुआ। कंग्रेचुलेशंस ईथन R99, you've unlocked लेवल ओमेगा, डू यू एक्सेप्ट? ईथन पहले तो कंफ्यूज हो गया। उसने ऐसा कोई लेवल कभी स्टेलर डोमिनियन में देखा ही नहीं था। इंटरफेस पूरा अलग लग रहा था, फ्यूचरिस्टिक एंड ग्लोविंग, जैसे किसी एलियन टेक का डिजाइन हो। उसने स्क्रीन के कॉर्नर में देखा, टाइम बार रिवर्स काउंट कर रहा था। 0:14, 00:13। उसने बिना सोचे क्लिक कर दिया और एक सेकंड में सब स्क्रीन ब्लैक हो गई। नेक्स्ट मोमेंट उसके कंप्यूटर ने एक हाई पिच्ड टोन दी, जैसे कोई बायोमेट्रिक स्कैन हो रहा हो। ईथन ने देखा स्क्रीन पे उसका फेस रिफ्लेक्ट हो रहा था। फिर स्क्रीन पे एक और मैसेज आया, प्रिपेयरिंग न्यूरल सिंक एनवायरनमेंट, डू नॉट रेजिस्ट। उसका हार्टबीट तेजी से बढ़ने लगा। पहली बार उसे गेम खेलते वक्त डर लगा। वो स्क्रीन से दूर हट गया, लेकिन उसका दिमाग हल्की डिजीनेस फील कर रहा था, जैसे उसके थॉट्स किसी ने खींच लिए हो। और फिर एक ब्राइट लाइट स्क्रीन से निकलकर उसकी आंखों में घुस गई और सब कुछ अंधेरा हो गया। जब उसने आंखें खोली, वो अपने रूम में नहीं था। वो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लाइक पॉड के अंदर था, जहां से बाहर देखकर वो सिर्फ एक ग्लोइंग एलियन चेंबर देख सकता था। वॉल्स मेटालिक थी, लेकिन ब्रीथ कर रही थी जैसे लिविंग मेटल हो। लाइट स्लोली ब्लिंक कर रही थी और हवा में एक हमिंग साउंड चल रही थी जो उसके दिमाग के अंदर जा रही थी। ईथन ने पॉड के अंदर पैनिक करते हुए चिल्लाया, हेलो, व्हाट इज दिस, वेयर एम आई? उस वक्त एक वॉइस आई, काम और डीप, बिना किसी स्पीकर के, सीधा उसके माइंड में, डू नॉट बी अफ्रेड, यू आर इन नो डेंजर, दिस इज द हॉल ऑफ इवैल्यूएशन। ईथन ने चिल्लाते हुए पूछा, हु आर यू? वॉइस फिर आई, I am Virex of the Tharn Dominion. We have been observing your mind. ईथन स्पीचलेस रह गया। उसने सोचा शायद यह कोई नेक्स्ट लेवल वर्चुअल एक्सपीरियंस है, पर सब कुछ इतना रियल लग रहा था। उसका हार्ट बीट, उसकी टच सेंसेशन, इवन उसकी ठंडी सांस। उसने धीरे से पूछा, दिस इज रियल? वॉइस काम थी, यस, यू हैव क्रॉस्ड द सिमुलेशन थ्रेशोल्ड, यू आर नाउ कनेक्टेड टू आवर न्यूरल सिंक सिस्टम, वी ब्रॉट यू हियर टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर। ईथन ने आंखें पतक कर पूछा, व्हाई मी? विरेक्स ने एक मोमेंट पॉज लिया, फिर कहा, बिकॉज यू बीट मी, नॉट वंस but twice. You did something we Tharn have never seen. Improvised strategy, unpredictable logic, creative warfare. That makes you dangerous. Ethan confused था। उसने तो बस गेम खेला था। उसने तो सिर्फ माजे के लिए क्रेजी टैक्टिक्स यूज किए थे। पर अब उसे समझ आ रहा था कि उसकी हर मूव एक एलियन स्पीसीज के लिए एक स्टडी बन चुकी थी। पॉड स्लोली ओपन हो गया और ईथन धीरे से बाहर निकला। उसके सामने एक टॉल सिल्वर आर्मर्ड फिगर खड़ा था, कमांडर विरेक्स। बाद विरेक्स का फेस क्लियरली विजिबल नहीं था, पर उसकी आंखों में एक अजीब रिस्पेक्ट था। वो कोई एनिमी नहीं लग रहा था, पर वो फ्रेंडली भी नहीं था। उसने ईथन से कहा, वॉक विथ मी, देयर समथिंग यू नीड टू सी। ईथन साइलेंटली फॉलो करता गया।
उन्होंने एक लॉन्ग कॉरिडोर क्रॉस किया जिसमें वॉल्स में रियल टाइम गैलेक्टिक बैटल्स दिखाई दे रही थी। एक स्क्रीन में अर्थ के सैटेलाइट्स दिख रहे थे। एक और स्क्रीन में दूसरी एलियन स्पीशीज का फुटेज चल रहा था। वेरेक्स ने एक मोमेंट पे रुक कर कहा, "You think games are just games, but what you played were simulations of real war tactics. We scan planets for potential mines that can outthink even our advanced AI. You were flagged." Ethan shocked था। उसने almost hoax से बोला, "So, I was tested?" Virex nodded. "Yes, and now we need to decide, are you a future ally or a future threat?" ईथन का दिमाग ब्लैंक हो गया। वो सिर्फ एक नॉर्मल लड़का था, वीडियो गेम में अच्छा था बस, पर अब वो किसी इंटरस्टेलर क्वेश्चन के सेंटर में खड़ा था। वायरेक्स ने एक और स्क्रीन एक्टिवेट की, जहां पर एक रिकॉर्डेड बैटल दिखाया गया, लेकिन इस बार ईथन खुद उस फुटेज में था। उसकी रियल लाइफ गेम प्ले स्क्रीन एलियन होलोग्राम में दिखाए चल रही थी, एंड वायरेक्स के एलियन ऑफिसर्स उसे एनालाइज कर रहे थे, एज इफ ही वॉज अ मिलिटरी प्रोटोटाइप। ईथन ने स्लोली पूछा, "What do you want from me?" विरेक्स ने कामली जवाब दिया, "We want to train with you, learn from you, understand your kind. In exchange, you will see things no human has ever seen." ईथन अब कंफ्यूज नहीं था। उसके अंदर एक्साइटमेंट भी था और थोड़ा डर भी, लेकिन एक पार्ट उसका ऐसे फील कर रहा था जैसे उसके सारे वीडियो गेम ईयर्स अब किसी रियल काम आ रहे हो। उसने स्लोली पूछा, "If I say no," विरेक्स ने जवाब दिया, "then we erase this encounter. You return home, but a part of you will always remember." ईथन ने सोचा, उसने अपने लाइफ में कभी ऐसे डिसीजन नहीं लिया था। ये किसी फैंटेसी नॉवेल या साई-फाई मूवी का सीन लग रहा था, पर यह रियल था। उसने स्लोली हेड नॉड किया, "ओके, I'll stay. I want to know more." विरेक्स ने उसके रिस्पॉन्स पे स्लाइट बाव किया। "Then welcome to the Tactical Exchange Initiative, Ethan Reyes." और इसी के साथ एक ग्लास चेंबर ग्लो करने लगा। उसमें ईथन के लिए एक एडवांस्ड सिमुलेशन सूट रेडी था, जो एलियन टेक्नोलॉजी और ह्यूमन एर्गोनॉमिक्स का मिक्स था। ईथन ने सूट को देखा, फिर विरेक्स को। उसने हल्की सी स्माइल दी और बोला, "Let's see if you can keep up with me this time." विरेक्स के फेस पे एक लाइट पल्स ब्लिंक की, जो उनके कल्चर में स्माइल जैसा होता था, और वहां से एक नए जर्नी की शुरुआत हुई। एक लड़का जिसका सपना सिर्फ एक गेम मास्टर बनना था, अब एक गैलेक्टिक स्ट्रैटेजिस्ट बनने जा रहा था। ईथन ने एलियन सूट पहना तो उसे लग रहा था जैसे उसका पूरा बॉडी एक नई एनर्जी से भर गया हो। सूट हल्का था, लेकिन अंदर से उसमें थाउजेंड्स ऑफ इनविजिबल सर्किट्स थे जो उसके थॉट्स के सिग्नल्स से कनेक्टेड थे। जैसे ही उसने एक मूव सोचा, सूट ने उसे इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड किया। उसने लेफ्ट फुट उठाया और एक होलोग्राफिक फ्लोर पर रखा, तो फ्लोर ने खुद ब खुद डायरेक्शन एडजस्ट कर लिया। सब कुछ लगभग मैजिकल था, लेकिन अब मैजिक नहीं, साइंस बन चुका था। कमांडर वीरेक्स ने ईथन को एक सर्कुलर ट्रेनिंग जोन में ले जाया। वहां पर कुछ और एलियन वॉरियर्स खड़े थे, ईच फ्रॉम डिफरेंट प्लैनेट्स। उनका साइज, शेप, स्किन कलर अलग था, लेकिन सबके सूट्स हाईटेक और सिंक्रोनाइज्ड थे। ईथन ने सोचा, "This is not just about learning, this is about proving." विरेक्स ने डिक्लेयर किया, "Today, Ethan Reyes will enter the Grand Nexus trial, a real-time war simulation, where tactics are not just tested, they evolve." सब वॉरियर्स ने ईथन की तरफ देखा। कई लोग स्केप्टिकल थे। एक थार्न ऑफिसर ने सॉफ्टली बोला, "He is just a child." ईथन ने सुना। उसका दिमाग गर्म हो गया, पर उसने रिएक्ट नहीं किया। वो बस अंदर से थोड़ा स्माइल किया और बोला, "Let's see who plays like a kid today." ट्रायल स्टार्ट होने से पहले ईथन को एक चॉइस दी गई, एक एलियन एआई या खुद का ह्यूमन स्टाइल इंटरफेस चूज करने का। ईथन ने बिना हेजिटेट किए अपना ओल्ड इंटरफेस चुना, जो वो स्टेलर डोमिनियन में यूज करता था। विरेक्स थोड़ा सरप्राइज था। "Why not choose our advanced models?" विरेक्स ने पूछा। ईथन ने कामली बोला, "Because I win with mine." सिमुलेशन जोन एक्टिवेट हुआ। पूरा रूम एक गैलेक्टिक वॉरफील्ड में ट्रांसफॉर्म हो गया। नेबुलास, एनिमी फ्लीट्स, मीटियर स्टॉर्म्स, वर्म होल्स, सब कुछ रियल जैसा था, और हर वॉरियर को अपना स्क्वाड असाइन किया गया। ईथन के पास 6 ड्रोन्स थे, लेकिन सब आउटडेटेड मॉडल्स। सबसे कम पावर, सबसे कम शील्ड, सबसे स्लो स्पीड। एलियन वॉरियर्स थोड़ा हंस दिए। "This will be quick," एक ने बोला,
ईथन ने उनकी तरफ देखा और सिर्फ एक लाइन बोली, स्पीड डजंट मैटर व्हेन योर एनिमी कांट गेस योर नेक्स्ट मूव। सिग्नल मिला। ट्रायल बिगिंस। सब फ्लीट्स एक्टिवेट हो गए। ईथन ने अपने ड्रोन्स को एक स्कैटर्ड फॉर्मेशन में भेज दिया, लेकिन एक ड्रोन उसने इंटेंशनली एक एस्टेरॉयड के पीछे छुपा दिया। विरेक्स, जो एक ऑब्जर्वर के रोल में था, उसने नोटिस किया। व्हाट इज ही प्लानिंग? उसने सोचा। एलियन वॉरियर्स फास्ट मूव्स कर रहे थे। उन्होंने लेजर ग्रिड्स, प्लाज्मा बैरियर्स और वार्प गेट्स यूज किए। ईथन पहले सिर्फ उनका ऑब्जर्वेशन करता रहा, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि एक स्पेसिफिक वॉरियर रिपीटेडली एक पाथ फॉलो कर रहा है, उसने अपने हिडन ड्रोन को एक्टिवेट किया। ड्रोन ने एक स्लो ईएमपी रिलीज किया जो डायरेक्ट एनिमी के पावर कोर पे गया। रिजल्ट? होल स्क्वाड का मोशन फ्रीज हो गया। सब शॉक्ड। ईथन ने बोला, प्रिडिक्टेबल पैटर्न इज ऑलवेज द फर्स्ट मिस्टेक। विरेक्स स्माइल किया। पहली बार। ईथन ने नेक्स्ट लेवल का प्लान एक्टिवेट किया। रिवर्स टैक्टिक्स। जब सब लोग सेंट्रल बेस पे अटैक करने जा रहे थे, उसने अपने ड्रोन्स को स्कैटर कर दिया। कहीं पे सिर्फ होलोग्राफिक वर्जन्स भेजे, रियल वंस सिर्फ डीकॉय के पीछे छुपे थे। एलियन एआई कंफ्यूज हो गया। एनिमी फायर ब्लैंक शॉट्स मारता रहा, और जब फाइनली उनका शील्ड डाउन हुआ, ईथन के रियल ड्रोन्स एक सिंगल बर्स्ट स्ट्राइक के साथ पूरे बैटलफील्ड पे डोमिनेंस ले आए। सब ऑब्जर्वर साइलेंट हो गए। एक वॉरियर ने बोला, दिस इज नॉट स्ट्रैटेजी, दिस इज केओस। वायरेक्स ने आंसर दिया, नो, दिस इज इंट्यूइशन। ट्रायल ओवर होने के बाद स्कोर डिस्प्ले हुआ। ईथन टॉप पे था। दूसरे वॉरियर्स 80%, 85% पे थे। ईथन 97.6%। ईथन ने अपना हेलमेट उतारा और सीधा विरेक्स की तरफ देखा। आई एम नॉट हियर जस्ट टू प्ले योर ट्रायल्स, आई वॉन्ट टू नो द ट्रूथ, व्हाई मी? विरेक्स ने स्लोली बोला, बिकॉज वी नीड यू। फिर विरेक्स ने एक सीक्रेट डोर एक्टिवेट किया। उसके अंदर एक एंशिएंट आर्काइव चेंबर था, जहां होलोग्राफिक फाइल्स फ्लोट कर रहे थे। उसने ईथन को एक पुरानी रिकॉर्ड दिखाई, थार्न वर्सेस अ लॉन्ग लॉस्ट स्पीसीज। That species was wiped out because they underestimated Thorn's logic. But, Virex continued, there is a prophecy in our older records that someday a species will emerge. Not stronger, but stranger. Not faster, but smarter, in ways we cannot understand. Ethan ne softly bola, and you think humans are that species? Virex ne jawab diya, we don't think, we fear. ईथन साइलेंस में चला गया। उसने रियलाइज किया कि पूरा गैलेक्सी एक टेंशन में जी रहा था। लॉजिक वर्सेस अनप्रिडिक्टेबिलिटी, कंट्रोल वर्सेस केओस, और कहीं ना कहीं उसका माइंड दोनों का कॉम्बिनेशन था। उस रात उसने अलोन मेडिटेशन चेंबर में टाइम स्पेंड किया। उसके माइंड में अर्थ के फ्रेंड्स, स्कूल, मॉम, डैड और उसका सिंपल रूम फ्लैश हुआ। उसने रियलाइज किया कि अब वो पूरा चेंज हो गया है, लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी था, अब आगे क्या? अगले दिन वायरेक्स ने एक ऑफर दिया, Join our intergalactic academy, train others, help us build a new alliance, and in return we'll protect Earth from what's coming. Ethan confused hua. Coming? What's coming? Virex serious ho gaya. Our species beyond logic, beyond chaos. They are pure destruction. And they've already sensed your presence. Ethan ka throat dry ho gaya. Usne pucha, so, I'm the reason they noticed Earth? Virex quietly bola, yes. But now, you may also be the reason they survive. Ethan ने deeply सोचा, लेकिन अब डर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। उसने फाइनली हाँ बोला, Okay, I'll stay. I'll fight. Not because I'm chosen, but because I choose to. और इसी के साथ, Ethan Reyes, एक नॉर्मल अर्थ बॉय, एक गेमर, एक ड्रीमर, गैलेक्सी का सबसे यूनिक वॉरियर बन गया। उसका नाम अब सिर्फ अर्थ के सर्वर पे नहीं था। उसका नाम अब एक सिग्नल था, डिस्टेंट स्टार्स तक सुना जाने वाला। A voice echoed in the alien ship logs. He doesn't just play the game, he rewrites the rules.